Thought for the chapter: Life is like a camera. Focus on what's important and you will capture it perfectly. Chapter 2: Components of food. So students, after posting my first video of chapter 1, I got lot of comments in my mailbox that I should cover the topics in little more detail, and after that I should solve the questions that are there in NCERT. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया है. थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी. और आई हैव ट्राइड कि मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करूं इस चैप्टर में, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड देन वील मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ NCERT. So we'll cover up components of food, nutrients, functions of nutrients, test for important nutrients, balanced diet, deficiency diseases. Components of food. So as we have seen in chapter 1, that food item has various ingredients and all these ingredients have various components. ये जो food ingredients होते हैं इसमें different components होते हैं जो हमारी body के लिए nutritional elements provide करते हैं, and these components are essential for proper functioning, growth and maintenance of our body. क्या होते हैं ये components? Nutrients. Nutrients could be in the form of carbohydrate, fat हो सकते हैं, protein, vitamins और mineral. Apart from nutrient, dietary fibers and roughages. Dietary fibers ये directly तो contribute नहीं करते nutrition के लिए, however they are very important for other aspects and for proper functioning of our body. इसके क्या functions हैं ये हम आगे देखेंगे. Water we all know is essential component of our body for maintaining the body temperature, for fluid maintenance. इस सब के लिए हमें water की ज़रूरत होती है. So nutrients, हमने कहा components of food में nutrients होने चाहिए. So what are these nutrients? न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट है हमारे फूड में जो किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी में आने ज़रूरी हैं. इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एक्शंस इन आवर बॉडी. दे आर कंपोनेंट्स व्हिच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. Carbohydrates, they are called energy giving food. Fats are also energy giving food. Proteins are body building. Vitamins and minerals, they are protective food. Apart from this, roughages and water, they are also additionally required by our body for proper functioning. Carbohydrates. As I said, ये energy giving food होते हैं. They provide energy to the body. Instant energy provide करते हैं carbohydrate हमारी body को. Carbohydrate 3 forms में basically starch, sugar और cellulose की form में होते हैं, but in our human body ये starch और sugar की form में utilize होते हैं. So various sources जो शुगर की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट: बनाना, ग्रेप्स, शुगर केन. इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च: राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, एटसेट्रा. सो लेट्स टेस्ट कि हम कह तो रहे हैं कि इन कंपोनेंट्स में, इन इंग्रेडिएंट्स में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. सो लेट अस आल्सो ट्राई टू टेस्ट एंड फाइंड आउट कि वाकई क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है.
So what we will do is, in order to test carbohydrate or starch in our food, we'll take a portion of the food material which we want to test. So हम एक पोटैटो ले लेते हैं. हमने कहा पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है. पोटैटो, रॉ पोटैटो का हमने पीस लिया है. उस पे हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. एंड starch, when comes in contact with the iodine solution, it turns blackish blue. तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि जब उसमें आयोडीन डाला गया उस पर, पोटैटो पर, तो वहां ब्लैकिश ब्लू स्पॉट हो गया, which confirms that potato has carbohydrate or starch. फैट्स कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. They also help in preventing heat loss from the body surface. A slight layer of fat on the body surfaces, slight deposit is important, but too much of fat will lead to obesity. So fat भी limited amount में ही हमें लेने चाहिए. Now there are two kind of fat, good fats and bad fat. Good fat means unsaturated fat, जो एक limited amount में हमारी body को चाहिए होते हैं. जैसे जो हमें ऑलिव ऑयल से फैट मिलता है, एवोकाडो से मिलता है, कोकोनट से मिलता है, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. बैड फैट्स जनरली हमें जंक फूड में मिलता है. इसलिए बच्चों, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. सोर्सेज ऑफ गुड फैट, प्लांट सोर्सेज, ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स. एनिमल सोर्सेज, फिश, मीट, मिल्क, बटर, घी, एग. सो फैट लीजिए, गुड फैट लीजिए एंड विद इन लिमिटेड क्वांटिटी लीजिए. सो हाउ डू वी टेस्ट फॉर फैट? अब फैट भी हमारे फूड कंपोनेंट, फूड इंग्रेडिएंट में है. ये कैसे टेस्ट करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट. आप अपना कोई फूड जिसमें हम कहते हैं कि फैट प्रेजेंट हो सकता है, आप उसको एक पेपर पे रखिए और उसको पेपर फोल्ड करके क्रश करिए. जब आप उसको क्रम्पल करेंगे, क्रश करेंगे और उसके बाद पेपर को ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे एक ऑयल का ट्रांसलूसेंट स्पॉट, पार्शियली ट्रांसपेरेंट जो होता है, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, वो स्पॉट आपको दिखेगा. कहते हैं ना तेल का दाग पड़ गया है या बटर का. सो दैट टेल्स दैट दिस फूड आइटम हैज फैट. Proteins, very important for us because they are body building food. They also help in repair of our tissues. They also help in digestion. What are the sources, good sources of protein? Plant sources, pulses, soyabean, Nutrela जो खाते हैं, gram, all dals, moong. So all these chickpea, kidney beans, all these are good sources of protein. Animal sources, meat, paneer, fish, egg, cheese, all these are good sources of protein obtained from animals. So we have looked at the test for carbohydrate, test for fat. Now let's also look at test for protein. कैसे टेस्ट करेंगे कि प्रोटीन उस पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट है. सो हम उस फूड को लेंगे, उसका छोटा सा सैंपल लेंगे, बट इसमें हम पूरा साबुत होल फूड नहीं लेंगे. वी हैव टू ग्राइंड दैट फूड. So we will grind that food portion and we'll mix it in water in a test tube. After that, we will add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of hydroxide solution and we'll shake it well. जब इसे शेक करेंगे तो we'll see a purplish color solution or a violet color solution. If we see a violet or a purplish color solution, that means protein is present in that food item or food material जो food sample आपने लिया था. So vitamins बहुत essential होते हैं.
आप सभी ने बच्चों सुना होगा, लोग विटामिन की टैबलेट्स भी खाते हैं। आजकल लोग हर पल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनमें विटामिन्स हो। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जनरली नेचुरल जो फूड है उसके थ्रू कोशिश करिए कि आपके डाइट में विटामिन जाए, और जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो आप बहुत ज़्यादा प्रेफर मत करिए। Vitamins are essential for growth and maintenance of our body. What do? They do not contribute directly as a nutrient, but they help in proper utilization of other nutrients, जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन्स कौन से होते हैं? आपने बेसिक सुने होंगे, ABCDE के। जब विटामिन्स को डिस्कवर किया गया था तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई पीपल वर नोइंग ABCD, सो दे नेम्ड इट एज ABCDEK, and there was no other special name given to them. Vitamins could be water soluble or fat soluble. दो विटामिन B और विटामिन C वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन A, D, E and K फैट सॉल्युबल होते हैं। Our body can only make vitamin D and K. हमारी बॉडी विटामिन D और K बना सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसी डाइट नहीं लेंगे एक्सटर्नली जिसमें विटामिन D और K हो। वो भी हमें लेनी होती है क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में ही विटामिन बॉडी बनाती है। अदर विटामिन, जो बाकी के विटामिन हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो तो डेफिनेटली हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में लें। Vitamins, their physiological actions and their sources. Vitamin A. This is required for proper vision for keeping the skin healthy. What are the sources? Green leaf, vegetable, cod liver oil, liver, ripe tomatoes, हमारा favorite mango, carrot, milk and papaya. Vitamin B1. Why is it required? For growth and for proper functioning of heart, nerves and muscles. किस किस में मिलता है? Milk, egg, meat, vegetables, whole grain, seafood. Vitamin C, ये इम्यूनिटी डेवलप करता है, ये टीथ और गम्स, दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखने में काम आता है, एंड इसका गुड सोर्स सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो विटामिन सी में रिच होते हैं, जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन और गुआवा में भी विटामिन सी होता है। विटामिन डी, ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड वी गेट इट फ्रॉम मिल्क, फिश, liver oil, egg, exposure to sunlight. So sun is a natural source जिसके थ्रू हम विटामिन डी अपनी बॉडी को दे सकते हैं, इसलिए कहा जाता है थोड़ी देर धूप में भी अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। विटामिन ए, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस फंक्शनिंग, और इसके अलावा ये एजिंग को स्लो करने में भी हेल्प करता है। जो टिश्यू डैमेज हो रहा होता है, जो प्रोसेस होता है एजिंग में टिश्यू डैमेज का, उसको डीले करता है। क्या सोर्सेज हैं? व्हाट आर गुड सोर्सेज? जर्मिनेटेड ग्राम्स और आपके सारे स्प्राउट्स हैं, व्हीट जर्म ऑयल है, बटर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। विटामिन के, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी स्टूडेंट्स को इंजरी होती है, आपने देखा होगा कोई चोट लगती है तो ब्लड ऊज आउट होता है, और हम कोशिश करते हैं कि खून जल्दी रुक जाए। तो ये ब्लड तब रुकता है जब कोएगुलेशन होता है या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। इस क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ज़्यादा खून बह जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, तो किसी की डेथ भी हो सकती है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। क्या सोर्सेज हैं? कॉलीफ्लावर है, एग योक है, कैबेज है। सो आपने देखा कि बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, एग, मिल्क, मीट, ये सब चीज़ें हमारी डाइट में एसेंशियली होनी चाहिए क्योंकि विटामिन्स एक्सेट्रा उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। सो आफ्टर विटामिन, मिनरल्स। Now these minerals are required in very small quantity. ऐसा नहीं है कि हमें बहुत large quantity में चाहिए होता है, but they are definitely required by the body. So certain metals and non-metals, they are
termed as minerals and are required by our body. They are required for normal functioning, do not contribute directly to the nutritional value, but are required for proper and normal functioning of our body. Let's look at minerals, functions and their sources. Iron. Iron is required because it helps in formation of hemoglobin. और hemoglobin क्या करता है? ये ऑक्सीजन को अपने साथ सेल्स तक ले जाता है. सोर्सेस क्या है आयरन के? एग, जैगरी, गुड़, रागी, स्पिनच, ग्राउंडनट, ग्रीन वेजिटेबल्स. आयोडीन, ये क्यों जरूरी होता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन थायरॉक्सिन. और ये जो थायरॉक्सिन प्रोटीन होता है ये थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में होता है उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है. व्हाट आर द सोर्सेस? सी फूड, फिश, आयोडाइज्ड सॉल्ट. कैल्शियम, it is required for stronger bones, for making bones and teeth, helps in blood clotting. क्या सोर्सेस है? मिल्क, milk products, cereals, meat, green leafy vegetables. Phosphorus. Why is it required? It also helps in formation of bones and teeth. क्या sources है? Nuts, milk, bajra, green vegetables. They are good sources of phosphorus. Sodium and potassium. It helps in maintaining body fluid. जो body fluid होता है उसके proper level को maintain करने में सोडियम और पोटेशियम हेल्प करते हैं. और क्या इसके sources है? Common salt, जो आप सफ़ेद नमक खाते हैं वो इसका most common source है. Vegetables है, milk है. Fluorine. It is very very important for functioning of nervous system and also prevents tooth decay. Most common, most important source of fluorine is water. Refuges or dietary fibers. So as I have said earlier, they have no direct contribution as a nutrient but are definitely required for proper functioning of our body. Refuges or dietary fibers का क्या काम होता है? They help in digestion. They provide bulkiness feeling. जो हमें लगता है खाना खाने के बाद कि अब पेट भर गया है, ये bulkiness की feeling हमें refuges से मिलती है. They also help to prevent constipation. They help in retaining water in the body और undigested food को excrete out करने में ये help करते हैं. Good sources of refuges किन में होता है? All fresh fruits, vegetables, salads. Water, very essential for life. We all know that. It is important because it helps in transporting nutrients in the body. It also helps in maintaining body temperature. हमारी body के temperature को maintain करने में water का बहुत important role होता है. And it helps in excreting body waste. जो body waste होते हैं उनको बाहर excrete out करता है urine के form में. It also acts as a medium for biochemical reactions. जो हमारी body में biochemical reactions होते हैं उनको ये medium provide करता है. उन reactions को करने में ये medium provide करता है. क्या sources हैं? Water, milk, tea, coffee, juices, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्लाइड में जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दिख रहे हैं इसमें कितने सफिशिएंट अमाउंट में वाटर कंटेंट है. सो रिवाइज द फूड ग्रुप. बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. आपको मीट, चिकन से मिलता है, पल्सेस से मिलता है. प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. बेसिकली ये हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है. एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं. सीरियल्स से मिलता है, फैट्स एंड शुगर से मिलता है.
So we have looked at what are components of food. क्या ऐसे nutrients हैं जो हमारी डाइट में required होते हैं. Now let's look at what is balanced diet. तो को ऐसी डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. द डाइट which contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. What is malnutrition? अगर जो भी ये डाइट हम ले रहे हैं इसमें जो प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर नहीं होगा तो उस डाइट के कारण मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा. मतलब उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं. सो मैल न्यूट्रिशन इज इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट विच मे लीड टू मैल न्यूट्रिशन. अंडर नरिशमेंट. सी इन आवर कंट्री इटसेल्फ बहुत सारे स्ट्रेटा के लोग हैं. बहुत सारे स्ट्रेटा में ऐसा है कि उनके पास सफिशिएंट फाइनेंसेस नहीं होते, इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि वो बहुत ही रिच डाइट खा सकें. कई बार उनकी डाइट्स में इवन जितनी बेसिक रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं डेली एक्टिविटी के लिए वो भी प्रेजेंट नहीं होती. तो वो सारे जितने भी पुअर बच्चे हैं आपने देखे होंगे वो सारे अंडर नरिश्ड होते हैं. सो व्हाट इज अंडर नरिशमेंट? Insufficient intake of required calories in daily diet leads to undernourishment. So if we don't take balanced diet and we have deficiency of any particular nutrient तो हमें बीमारियां हो सकती हैं. उन डिजीजेस को, उन बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. We will look at कि किस मिनरल, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें कोई बीमारी हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सो विटामिन ए, हमें पता है कि विटामिन ए इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन. तो अगर डेफिशिएंसी है विटामिन ए की तो लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. व्हाट आर द सिम्टम्स? योर विजन बिकम्स पुअर, आपका विजन पुअर हो जाता है, आपको ठीक से दिखता नहीं है. लॉस ऑफ विजन इन द नाइट, रात में देखने में प्रॉब्लम होती है. टोटल लॉस ऑफ विजन या पार्शियल लॉस ऑफ विजन हो सकता है. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से वी मे फेस बेरी डिजीज. और सिम्टम्स क्या हैं? आवर मसल्स बिकम वेरी वीक, वी हैव वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत थकान लगती है, कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती है. विटामिन सी ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और इसकी डेफिशिएंसी से वी सफर फ्रॉम डिजीज कॉल्ड स्कर्वी. व्हाट हैपेंस इन स्कर्वी? इन स्कर्वी वी सी गम्स की ब्लीडिंग. गम्स जो मसूड़े होते हैं वो हमेशा ब्लीड करते रहते हैं. एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी जो डिजीजेस होती हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि जितने भी वुंड्स हैं, जो चोटें होती हैं, उनको हील करने में, उनको सही होने में बहुत टाइम लगता है. विटामिन डी जो बोन्स, टीथ के लिए बहुत एसेंशियल है. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी द डिजीज दैट वन पर्सन में फेस इज रिकेट्स. रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, मुड़ी हुई बोन्स हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं. कैल्शियम, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टूथ. अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी देन बोन एंड टूथ डीके में happen. What are the symptoms? Weak bones and decay of tooth. Iodine. So as I told you, iodine is required for the formation of thyroxine. और अगर ये डेफिशिएंट होगा, इसकी सही क्वांटिटी डाइट में नहीं होगी तो थायरॉक्सिन सही प्रोड्यूस नहीं होगा, ड्यू टू विच द डिजीज कॉल्ड गॉइटर अकर्स. गॉइटर में क्या होता है? जो हमारे नेक में ग्लैंड होता है उसमें थायराइड ग्लैंड होता है जिसकी फंक्शनिंग में ये आयोडीन हेल्प करती है. तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो वो ग्लैंड की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी एंड द नेक बिकम्स सॉलन बिकॉज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड थायरॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली. और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन.
आयरन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, hemoglobin formation में help करता है and hemoglobin helps in carrying the oxygen into our body. It takes the oxygen to the cells. और अगर इसकी deficiency है, hemoglobin कम होगा, oxygen कम सप्लाई होगा, जिसके कारण अनीमिया हो सकता है. अनीमिया में we feel very weak, हमें बहुत weak लगता है. Now we will look at the questions from the exercises of NCERT book. Question 1. Name the major nutrients in our food. Major nutrients in our food are carbohydrates and fats, proteins, vitamins, minerals. Additionally, we also require dietary fibers, roughages, and water. Question 2. Name the following. The nutrient which mainly give energy, carbohydrates. The nutrient that are needed or nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body, protein. A vitamin required for maintaining good eyesight, that is vitamin A. A mineral that is required for keeping our bones healthy, calcium. Name 2 foods each rich in fats. Fat rich food कौन से होते हैं? Butter, nuts, rich in starch, potato, rice. डाइटरी फाइबर किस में ज्यादा होता है? ब्राउन राइस, कैरेट. प्रोटीन मीट में बहुत होता है, सोयाबीन में मिल सकता है. So tick the statement that are correct. Answer. By eating rice alone, we can fulfill nutritional requirement of our body. This is incorrect. Deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. This is correct. Balanced diet for the body should contain variety of food items. This is correct. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. This is incorrect. Question 5. Fill in the blanks. Rickets is caused by deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin B1 causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. Extra questions which are not in your NCERT book, but they may come in your test, assignments, assessment, so it is good for you to know them. Oxygen in the body is transported to tissues by hemoglobin. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A. Indigestible material in the food is known as roughages or dietary fiber. Name disease caused due to deficiency of protein. Kwashiorkor. Name disease caused due to deficiency of protein and carbohydrate. Marasmus. Which vitamin in mother's milk is double than that of cow? Vitamin C. इसीलिए कहा जाता है कि इनिशियल फेज में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो मदर्स मिल्क उनको मिलना एसेंशियल होता है. People living in coastal area do not suffer from goiter due to which diet? Due to seafood. Because seafood में आयोडीन बहुत अच्छा होता है इसलिए उनको goiter नहीं होता है. Overweight and bulkiness in body due to excess accumulation of fat in it is called obesity. Which are called protective food? Vitamins and minerals. Instant source of energy?
carbohydrate. Which form of carbohydrate is not digested by human body? Cellulose. The main carbohydrate we eat in our food, starch. हम sugar form में भी खाते हैं, but main हम starch form में लेते हैं. Rich source of both calcium and phosphorus. Milk. Good luck student. बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं. सो इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द वीडियो, तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आगे के अपडेट्स, आगे के चैप्टर्स के अपलोड के अपडेट्स आपको मिलते रहें.